ठीक है, so recording not started. ठीक है, so let's say if we are saying that this is v alpha, okay, and this is the, let's say, speed of alpha particle, then what is going to be, let's say, speed when it is going to, let's say, approaching the, like, closest to the, towards the nucleus. So we were saying that, okay, this is going to, let's say, go to r distance, right? So this is the r from nucleus, let's say this is positive. So at this point the velocity is going to be 0, and that's how we have said, okay, this is going to be velocity over here is going to be 0. So that is, right, that will convert into potential energy, and if this is going to convert into potential energy, so half m alpha v alpha square is going to convert into k q1 q2 by r. So that is k 2e q1 ze divided by r. So r is over here is capital R. Let's say, so r equals to, we can say, 4k ze square divided by m alpha b alpha square. So this is the formula we have seen. Now try to, let's say, the similar thing you have to do, and you have to solve this second question. And before you should solve a second question, let's say, let me give you one more question, then you can solve before, like, okay. Okay, so this is a question. Today's date is, what is the date today? 13th. Let's say 13th. So this is lecture 3. Start one example we can write on closest approach. So formula I will tell you, don't worry, and you can check your notes. Okay. So this is a question. Question is, an alpha particle having kinetic energy 7.7 mega electron volt. So an alpha particle having kinetic energy is equals to 7.7 mega electron volt is scattered by gold, and over here Z is 79 nucleus through 180-degree. Find distance of closest approach. So you have to find solution. Formula I have given, R equals to 4k ze square divided by m alpha v alpha square. Now you have to think about this. Here directly V is not given, but kinetic energy is given. So let's see how many of you can decode this part. Okay, kinetic energy means half m alpha v alpha square is given. Let's see.
के का क्या वैल्यू लेना है, ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? व्हाई यू आर आस्किंग? आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग in class. Maybe you have not made your notes, and whoever has not made their notes, that is not good thing. क्या आपने अपने नोट्स नहीं बनाए और आज आपको लग रहा है कि मुझसे आ नहीं रहा है? देखो अपने नोट्स में, और नहीं तो वेट करो, थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा. Over here gold is given. Okay, gold means atomic number 79. So I got one answer. Can you solve this? I think this is wrong, Aryan. Ashima, correct. Beta, atomic number can be in gram. Atomic number. Anushka, नहीं, no. Okay, so नो, नॉट अमन, गलत आ रहा है. 11 में तो आएगा नहीं इतना, 10 टू पावर 11 में नहीं आएगा. खुशी करेक्ट, ऐश्वर्या करेक्ट, ऐश्वर्या अय्यर करेक्ट. वेदिका, दिस ई की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी. श्रेयस गरल. चलो देखते हैं, काफी लोगों के आंसर हैं. लेट्स सी. सो ओवर हियर फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ. लेट्स ऑल ऑफ यू शुड सी दिस. MEV का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट आर, तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में. ठीक है, तो अब ये क्या होता है ये समझते हैं. राइट, मे बी दिस पॉइंट में भी आपको नहीं पता हो. ठीक है, सो इन जिन्होंने यहाँ पे गलती की है उनको मैं समझा देता हूँ. पहले ये समझते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इंटू वोल्ट, है ना. दिस इज, and coulomb into volt, that is called work. Coulomb into volt, that is called work. So that is मतलब charge into potential difference, that is work, Q into V. ठीक है,
So that is C into B, that means joule. So that is 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the minus 19 joule. ये एक पहली बात है, ये आपको याद रखनी है, यहाँ पे यूज होगी राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दे रखा है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी that is in mega electron volt. So half m alpha v alpha square, that is nothing but kinetic energy, and it is equals to 7.7 mega electron volt, that means 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the minus 19. So we will not do anything, we'll write like this. So now we are going to see what is going to be R over here. So we'll put everything over here, this all the values here, but be careful. Okay, so this 4k z square when m alpha is this, like half m alpha v alpha is this. So you want to write m alpha v alpha square, so this half is going to multiply here, or you can cut this 2 to 2. So anyway, what I'm writing here, I will write m alpha v alpha value. So m alpha v alpha square value you can write, that is 2 into 7.7 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 90. We will not do anything else. I'll write this value directly here. So now this formula is R equals to 4k z square. So that is 4. K is 9 into 10 to the power 9. Z is 79. And E square. E is 1.6 into 10 to the power minus 19. So that is one more time 1.6 into 10 to the power 19. Okay. Anyway, one value is going to cut. That's why I'm writing like this. Divide by 2 into 7.7 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So this is your, let's say, expression. So this is going to cut over here. ठीक है, ये यहाँ से इससे कट गया 2 times. Now you have this 79, 7.79. All these options are remaining. Let's see what can happen. Now we will check this part also. This is 10 to the power 6 and this is 10 to the power 9. So this is 10 to the power 3. So overall R we can get, that is 2 into 79 into 9 into 1.6 into 10 to the power 3, 10 to the power minus 19 is 10 to the power minus 16 divided by 7.7. So approximately if we are going to go through, then this is, let's say, 10 times. Let's say, okay. And over here, this is over here 1.6 into 2, that is 3.2. So R equals to, I'm just writing approximate value. If you are going to write, you'll get. So this is 3.2. ठीक है, 10 ये इधर चला गया into 9. Right, 2 into 1.6, 3.2 into 9 into 10 to the power minus 15, and this 9 and 3.2 is going to multiply, then this is going to be 28.8 है ना, 28.8. Obviously this value is approximately 28.8 into 10 to the power minus 15, or you can say 2.88 into 10 to the power minus 14. So this is approximation I have used. If you are going to write little bit higher value, 10 point something, so this value is going to be little bit higher than this. So R is approximately 3 into 10 to the power minus 14 meter. Now why we are writing meter? Because every unit we have taken, that is in SI है ना, K की value हमने किस में ली, Newton meter square by Coulomb square, and the value of kinetic energy we have taken in joule. So we got all these answers in standard unit. So R is going to be in standard unit. Now let's see कि कितने लोगों ने क्या क्या डाउट पूछे हैं. Okay, so सब अधिकतर लोगों ने आंसर्स दिए हैं. Okay, ठीक है, nobody is asking anything. तो I hope कि सबको ये solution clear है. Okay. Yes, Priyanka said she wants to ask something. Yes. Sir, can you please explain that part again? C into V is equal to joules. अच्छा, तो देखो होता ये है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था थोड़ा बहुत, है ना, लास्ट क्लास में. यस, है ना.
तो पोटेंशियल एनर्जी इज एक तो फोर्स इनटू वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया, और एक होता है लेट्स से Q इनटू V, कितना होता है Q इनटू V एक्चुअली। तो जैसे अगर आपको एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड श्रेयस। सो अनदर थिंग इज लेट्स से वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी, या फिर दैट इज नथिंग बट Q इनटू V। V यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, चार्ज, एंड V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आपका एक और फॉर्मूला है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। सो दैट्स व्हाई कूलॉम इनटू वोल्ट क्या होता है, जूल। अच्छा, आपको ये पता है क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क V इंटू आई हम लिखते थे एनर्जी, हीट के टर्म्स में, है ना। तो यहाँ पे V इंटू आई क्या है, आई यहाँ पे पर सेकेंड कितना चार्ज गया है, आई क्या होता है, करंट, चार्ज पर सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, अगर आप देखोगे तो Q इंटू V लिखा है एक तरह से, ठीक है। आई क्या है, चार्ज पर सेकेंड। तो अगर हम पर सेकेंड देख रहे हैं कितना वर्क हुआ है अकॉर्डिंगली, सो दिस इज V इंटू आई। So this coming from Q into V. I think this makes sense, right? जिन लोगों को ये बात अभी नहीं समझ में आई, आई थिंक आ गई होगी, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, राइट। वन 180 डिग्री का मतलब है वो वापस लौट गया है ना, दैट इज व्हाट यू वांट ना, कि एग्जैक्टली वो न्यूक्लियस की तरफ जाए, राइट। अगर वो 180 डिग्री पे नहीं होगा तो वो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी किसी मूवमेंट पे, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगर मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो ये जब 180 डिग्री पे ही घूमेगा तभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक पॉइंट पे जीरो होगी, और यहीं पे हम पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर ये डिफ्लेक्ट होगा मान लो, तो इसकी वेलोसिटी कहीं पे जीरो नहीं होगी, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, है ना। ये कैलकुलेशन है, आपको कॉपी नहीं करनी, खुद से करो। अच्छा, कैलकुलेशन में मतलब कॉपी करोगे, हाँ, खुद से करो। चलो नेक्स्ट, एक मिनट, ऐसे तो आप लोग अगर इतने सारे डाउट आएंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा देंगे तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे। जल्दी से पूछो, क्या है जास्मिन। हेलो, हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक डाउट है, अभी आप कह रहे थे ना कि मतलब वो जब डिफ्लेक्ट होगा तो मतलब किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो हाँ, उस केस में ऐसा हम क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली, कैसे पता चलेगा, आपको रिसीव ही नहीं हुआ तो आप पता कैसे करोगे। अच्छा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। बोलो जास्मिन, जल्दी फास्ट। हाँ सर, वो हाफ mv² था ना, उसमें वो 10⁻6 कहाँ से आ गया सर? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना। अच्छा ओके सर, समझ गया, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। वेरी गुड। चलो एनीवे, नेक्स्ट इज लेट्स से, अगर अभी जो ये असाइनमेंट दिया था इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कि अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v0 is projected from infinity and it approaches up to r0 distance from nuclei, then the speed of alpha particle which approaches up to 2r0 distance from the nucleus is, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि देखो अगर मान लो this question I am going just and I have shared this PDF with you, so you can see this what they are saying कि अगर मान लो यहाँ से मैंने एक अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से छोड़ा और इसकी स्पीड v अल्फा ओवर ईयर और ये न्यूक्लियस में पहुंच रहा है यहाँ पे मान लो यहाँ तक एंड दिस इज द डिस्टेंस r नॉट, ठीक है, दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच ओवर ईयर, ठीक है. Now how much speed we are going to let's say send from here, so that is going to be 2r naught, ठीक है. तो इसको थोड़ा और पास बना लेते हैं, let's say till here. Okay, this is the distance. तो जल्दी से बता दो बस. Let's say this is the distance, that is r naught. Now we are reaching till here and that is the distance 2r naught. So what is the v alpha here? Means v new alpha है ना, v dash in terms of this v alpha is given as v naught है ना, r naught. जल्दी बताओ सॉल्यूशन. ऑप्शंस में दिखा दे रहा हूँ. Okay, I got one answer, two answer, both are different. तो obviously एक सही होगा एक गलत. अमन का आंसर ठीक है, वेदांत आपका गलत है. क्वेश्चन नहीं समझा, कोई बात नहीं, अभी मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा तो आप देखना. चलो देखते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था भाई. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है. क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. यहाँ ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था दैट इज 0. और यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये इससे इसको टच मतलब जा रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज 0 है ना. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज ओवर हियर 0. So all the kinetic energy which we are getting here, that is converting into potential energy. This is the फंडा है ना, कॉन्सेप्ट. तो बस पहले क्या था, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एक तरह से, राइट, बिकॉज है ना दिस इज फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. सो ओवर हियर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ m अल्फा v नॉट स्क्वायर, ठीक है, शुरुआत में v नॉट थी. तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, k 2e डिवाइड बाई r की जगह यहाँ पे r नॉट, पहला. अभी कह रहे हैं कि बताओ कितनी स्पीड हम चेंज करें कि ये डिस्टेंस 2r नॉट हो जाए. एक रिलेशन मिल गया आपको, स्पेशली v नॉट की वैल्यू मिल गई. कुल मिला के आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो. दूसरे टाइम पे सेकंड टाइम इन्होंने क्या कहा कि हमें स्पीड नहीं पता है, m अल्फा v डैश है, लेट्स से दिस इज v डैश अल्फा है. so do you want to get this value and that is k 2e ze divided by 2r naught. ये बताना है कि ये कितना होगा. now can be write along this 2k ze square by r naught की जगह हम ये हाफ m अल्फा v अल्फा लिख सकते हैं. so from equation 1 and 2, और आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो तो आपको वैसे मिल जाएगा. whatever you feel like you can do. if you are going to divide then this value is going to cut by this value, this value is going to cut by this value, this value is going to cut by this value. only root 2 is going to left and that this 2 is going to left and this 2 is going to go up. so that is over here we can write v naught over here square v alpha dash square equals to 2. so you can write v alpha dash square is 2, sorry, control Z, v naught square divided by 2. so v alpha dash is v naught by root 2. so this is your answer.
बस जैसे आप अगर वेलोसिटी चेंज करोगे तो क्या होगा, अप्रोच जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज लेट्स से योर आंसर। कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेट्स से, ये तो अब आगे इसमें आप एक दो क्वेश्चन और हैं इसके, वो आप देख लेना। इसमें आती है बात, वो है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, है ना, ड्रॉबैक्स ऑफ तो भाई रदरफोर्ड मॉडल क्यों, क्या बात नहीं समझा पाया, दैट इज the biggest concern is stability of atom, okay. Okay, so that is, है ना, this stability of atom cannot be explained by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड फंस गए यहाँ पे, है ना। हुआ क्या, हम बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, सॉरी मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल electron will lose or will emit its energy while moving in electric field of positive charge। तो समझते हैं यहाँ पे, तो देखो इन्होंने क्या कहा, मैक्सवेल ने ये बोला कि देखो भाई ऐसा है, ये न्यूक्लियस रखा हुआ है, ठीक है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो जब ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूसली इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है। अब वो अगर वो कंटिन्यूसली इसको खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर अपने पाथ पे चलना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लूज करनी पड़ेगी भाई, सीधी बात है ना, तुम्हें पुश कर रहा है, बट यू वांट टू गो इन योर पाथ, क्या होगा, तुम्हें उसकी उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा मैं उल्टा बनाता हूँ, पहले मैं सर्कल बनाता हूँ, सर्कल बनाना, let's say this is circle, okay, now this is your nucleus, now this is electron, okay, so this is continuously, let's say, pulling electron towards itself, but this electron is moving, okay। इसका मतलब क्या है कि what this electron has to do, it has to continuously dissipate its energy to be its own path, है ना। ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत इस बात से। अब अगर मान लो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी अगर कम होती जाएगी तो धीरे धीरे एनर्जी खत्म होती जाएगी, और एनर्जी खत्म होती जाएगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूम के इसमें गिर जाएगा, तो है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर, राइट, ये ऐसा चलना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे धीरे ऐसे है ना, ये इसमें गिर जाएगा न्यूक्लियस में, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द डाउट विच मैक्सवेल ऑब्जेक्टेड, लाइक कि यार ये बताओ ये कैसे होगा। नाउ रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन कि ये क्यों नहीं होगा, समझ में आई बात। न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, अगर उसे अपने पाथ पे रहना है, इट हैज टू लूज द एनर्जी, और अगर वो अपनी एनर्जी लूज भी करेगा तो भी धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस, है ना। सो दैट्स व्हाई, है ना, दैट्स व्हाई व्हेन द एटम इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फॉल इन द न्यूक्लियस, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से ये क्या होगा, फिर ये स्टेबल नहीं होगा, है ना, दिस एटम इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, और ये एक तरह से खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
So this is what Maxwell said, and Rutherford could not explain stability of atom की ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है cannot be explained by Rutherford, है ना. तो according to Maxwell, electron will emit or lose. यहाँ पे emit का मतलब ये है lose, है ना. So emit, or you can say lose, its energy while moving in electric field of positive charge to remain at its path. But as electron is losing its energy, it will fall in nucleus ultimately. So this is what you have to remain. This part you should focus. Now I should write. Hence, electron will destroy proton, makes nucleus unstable. And Rutherford could not explain, explain why electron will not fall in nucleus, and hence not why electron will not fall in nucleus and keep rotating at the same path. So and why electron will keep rotating. Okay, why electron will keep rotating at the same path. So these are the, let's say, point which Rutherford could not explain. Everything was correct, but ये बात नहीं समझा पाए तो ये मॉडल फेल हो गया. ठीक है. So that's why this model was discarded. लोगों ने कहा कि ये बात सही नहीं है. उस टाइम पे लोगों ने कहा कि ये जो रदरफोर्ड ने कहा है ये गलत है ना. तो ये बात आप यहाँ पे लिख लो. वो तो बाद में लोगों ने, फिर जब बोर थ्योरी आई तब लोगों ने एक्नॉलेज किया, अच्छा रदरफोर्ड ने बोला वो सही बोला था. लेकिन एट दैट टाइम पीपल सेड कि नहीं नहीं थॉमसन वाला मॉडल सही है यार, ये रदरफोर्ड गलत कह रहा है ये. तो ठीक है, आप देखते हैं आगे. इसमें कोई डाउट किसी को? So I am having over here 155 students, ठीक है, and in the poll 168 students have attended given the board. So 13 students came and went. या तो either net connection or something. So problem is there. चलो ये बात समझ में आ गई. चलते हैं. चलो फिर आ गया अब अपना नेक्स्ट वाला पार्ट. हाँ यस, वेट.
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने 2 बार वोट दे दिया। अरे 2 बार वोट होने से तुम्हारी 2 अटेंडेंस नहीं लगेंगी, एक ही देना है। चलो एनीवे, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये सब जो है ना शुरुआत में फिजिक्स, एक तरह से ये फिजिक्स का वाला पार्ट है काफी कुछ, ठीक है। तो ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हो चुकी होती है। इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू टीच द सेम पार्ट दैट इज अंडर मॉडर्न फिजिक्स, है ना। चैप्टर का नाम क्या होगा? मॉडर्न फिजिक्स। और वो हम पढ़ाएंगे 12th के लास्ट में, ठीक है। बिल्कुल आप एकदम एंड पे, तो आपको पूरा फिजिक्स आ चुका होगा, तब तक केमिस्ट्री आ चुका होगा, राइट। तो नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेक्स्ट हेडिंग। और in short it is EMR. Now what is electromagnetic radiation? कि कभी भी, है ना, अगर कभी भी जो लाइट के मतलब सॉरी वेव का वेक्टर कुछ ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव and it is moving with speed v, and that is having two component or two other, let's say, component. One is represented by electric field and another is represented by magnetic field, है ना। b किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको एक तरह से बोलेंगे ये 3 डायमेंशन वेव है, 3D वेव, where electric field, magnetic field, electric field vector, magnetic field vector and velocity, where direction of electric field vector, magnetic field vector and velocity are perpendicular to each other. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लाइट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मान लो ये स्पीड जो है आपकी एक्स एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई एक्सिस पे और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे है। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये तीनों वेक्टर का एक तरह से समेशन है, 3 वेक्टर का आपने समेशन पढ़ा होगा, राइट। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा उसमें एक, अमृता व्हाट इज द प्रॉब्लम, कैन वी एक्सप्लेन दिस स्टेबिलिटी ऑफ एटम नाउ? भाई इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, प्रोटॉन खत्म हो गया, तो दैट मीन्स ऑल दीज आर गोइंग टू, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है सारे के सारे, है ना। अगर मान लो वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल खत्म हो गए, तो वो न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को खत्म करेंगे, एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू गेट अनस्टेबल। atomic number, everything is based on proton, na? That's how we are saying. So over here this is electromagnetic radiation, EMR. EMR में जो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है वो यही है कि तीनों जो वेक्टर, यहाँ पे 3 चीजें हैं, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, these are perpendicular to each other and the best example is over here is light, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट है, the electromagnetic radiation can be broken into let's say some part, ठीक है। उसमें है आपका
light. Mainly we are going to write. So light can be we can say divided, or we can say, let's say this is like उल्टा लिखते हैं इसको like this. So I am writing that over here light I am writing. Okay. That is component actually. हम उसको divide करेंगे तो ऐसा मतलब हम उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं. That light is a mixture of all those things. So this is divide is not the better term. So light has following component. So it's following component. So let's say we are talking about over here. We are having cosmic rays, then we are having gamma rays, we are having X rays, we are having UV UV rays, we are having visible region, visible light, we are having infrared, we are having microwave, and we are having radio wave. All these are according to this order is according to wavelength. ठीक है, as wavelength is increasing, this is the order. तो ये क्या हो गया, lowest wavelength. ये क्या है, that is going to be, I will take Dowd's weight, है ना, ये क्या होगा आपका lowest wavelength होगा. और ये रेडियो वेव की क्या होगी, हाईएस्ट वेवलेंथ. ये वेवलेंथ क्या होती है थोड़ी देर में बताएंगे. लाइक ठीक है, अभी डाउट देख लेते हैं. किसी ने हाथ उठाया था, कहाँ गए भाई जिसने हाथ उठाया था, चलो देखते हैं. इज दिस ए electromagnetic spectrum? Yes, this is electromagnetic spectrum. Yes. इसमें आपको रेंज याद नहीं करनी, कई बार रेंज लिखी रहती है ना, तो आपको याद नहीं रखनी, थोड़ा बस आइडिया रखना है. विजिबल के लिए आप थोड़ा आइडिया रख सकते हो, है ना. विजिबल रीजन, विजिबल इज, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर दोबारा लिख रहा हूँ, ये यहाँ तक लिख लो पहले जल्दी से. नहीं, गामा रेज को कॉस्मिक रेज नहीं बोलते हैं. कॉस्मिक रेज आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू, ये सब वेवलेंथ के हिसाब से है. हाँ, गामा रेज, मैंने इसको ऐसे गामा बना दिया है, आप लिख लो गामा. ठीक है, आप लिख लो इसको गामा. यस, दिस इज गामा. ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे, इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं. तो आई होप कि आपने लिख लिया है यहाँ पे. ठीक है,
तो ये विजिबल रीजन है। हम विजिबल रीजन को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये है विजिबल रीजन और विजिबल लाइट आप बोल सकते हो। दैट इज एक्चुअली फ्रॉम 3800 एंगस्ट्रॉम to approximately 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 to our -10 मीटर। ठीक है, और यू कैन से that is 0.1 nanometer. So 1 nanometer, what is nanometer? So 1 nanometer is 10 to our -9 मीटर। ठीक है, तो कई बार नैनो, आपने नैनो ट्यूब, नैनो सुना होगा, माइक्रो जैसे होता है वैसे नैनो है, and that nano is 10 to our -9. Angstrom is 10 to our -10, and angstrom and nanometer relation I have told you here. And this is wavelength, है ना, 3800 angstrom से मतलब ये रीजन आ गया आपका। and that is actually broken into colors, तो इसको बोलते हैं विबग्योर, है ना। that is violet, indigo, blue, green, yellow, ऑरेंज, रेड। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम हो गया यहाँ पे, राइट, ऐसा। ठीक है, सो ये जो वेरिएशन है ना, वो 7 रंग बोलते हैं ना, ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। यस यस जास करें, जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। सर वो आपने लेफ्ट साइड पे कितना लिखा है? 3800 एंगस्ट्रॉम। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये 2 0 एकदम एकदम मैच हो गए ना। ओके, चलो भाई, 0 0, ठीक है। तो ओके, दिस इज विजिबल रेंज, आपको याद रखनी है। ठीक है, एनीवे विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे वेवलेंथ हमने बोला था, तो सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, वेव नेचर और वेव। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम याद रखेंगे। जैसे हम एक वेव का रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि लेट्स से दिस इज योर वेव लाइक दिस, है ना। ऐसे कोई वेव है, जा रही है ऐसे घूमते हुए, राइट। इसको बोलते हैं साइन वेव, वैसे क्योंकि ये साइन थीटा का कर्व है ये ऐसे, राइट। तो इसको कभी कभी साइन वेव भी बोलते हैं। ठीक है, these are the highest displacement in one side, okay। तो यहाँ पे इन दिस साइड अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक पार्टिकल जो है वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा सकता है, वो यहाँ से हम देख रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, एंड लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रॉफ। एंड दिस इज कॉल्ड amplitude from the mean line। जिसको डाउट आया, चल देखते हैं डाउट क्या है। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप इन द वेवलेंथ पार्ट। ओके, कुछ कुछ बुक्स में 4800 8000 दिया है, ठीक है, उनकी बात भी सही है। दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, आप बस ये याद रखो अभी के लिए 3800 टू 7600। यस, लिख लो भाई निशांत जल्दी से।
तो बस हम यहाँ पे बस बात कर रहे हैं कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है अंश, कुछ खास नहीं, बस छोटी छोटी बातें शायद आपको पता भी होंगी कि भाई इनमें ये एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, वही बस दोबारा लिख ले रहे हैं एक तरह से। कुछ पार्ट हैं उनको लिख लेते हैं, जैसे पहला है वेवलेंथ। क्या होता है वेवलेंथ, कौन बताएगा भाई? तो वेवलेंथ इज एक्चुअली कॉल्ड कि दो जो क्रेस्ट है इनके बीच की, कोई बात नहीं बहुत लोगों को पता होगा, राइट। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। सो दिस इज डिस्टेंस between two consecutive crest और trough, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये है ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस की यूनिट होगी तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएंगी, है ना। वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या हो सकती है, दैट इज गोइंग टू बी मीटर, एक है ना, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, राइट। एंड अभी हमने देखा था नैनोमीटर, तो मैं बता देता हूँ नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम है ना 10⁻⁻10 मीटर, और इनके बीच में रिलेशन आप खुद बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, हमने पहले लिखे भी हैं, राइट। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ, जल्दी से लिख लो, मैं फिर ऊपर करूंगा। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। शायद ये आपने टर्म नहीं सुना हो, तो कभी कभी एफ से भी रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको न्यू ना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, मैं लिख देता हूँ न्यू, दैट इज न्यू। थोड़ा सा स्लाइड वी है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली वी, है ना, वी वेलोसिटी होता ही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सिंबल, दैट इज सर्टेनली लाइक दिस, राइट। बेटर इज मैंने ऐसे लिखा है, तो दिस इज न्यू। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई, तो एक तो आप ये बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी को सिंपल है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, है ना, आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा आरपीएम लिखा होता है ना, राउंड पर सेकेंड, कितना घूम गया ये, है ना, ऐसे सर्कुलर में ये कितना घूम गया लगातार एक सेकंड में, और सॉरी राउंड पर मिनट होता है वहां पे, हम यहाँ पे सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम मान लो और दूसरा सोचें कि बताओ कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो गई है ना। एक अभी आपको वेव, जैसे अगर आप वेव के बारे में सोचते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि लेट्स से आपने ये वेव्स कहाँ देखी हैं, समुद्र में देखी है ना, या फिर आप जैसे मान लो कोई एक रस्सी लो और उसको एक पर्टिकुलर डोर से कहीं से बांध दो, और यहाँ से आप ऐसे थोड़ा सा हल्का सा इम्पल्स दो, तो ऐसे ट्रेवल करते हो जाएगी ये वेव, एक मिनट यहाँ, दैट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, है ना, ऐसे ट्रेवल करते हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि, एक मिनट डाउट्स हैं बहुत सारे, एक मिनट, ठीक है कोई बात नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा है प्लीज टेल, थैंक यू सर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस दिस इज गोइंग टू गो, राइट, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा, मैक्सिमम डिस्टेंस। अभी देखो ये जो पार्टिकल है, राइट, ये जो आपकी रोप है, रस्सी है ना, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। दोनों इज बोथ आर एक्चुअली, ये आगे आएगा कि बोथ आर एक्चुअली कैरिंग द एनर्जी, है ना, एक तरह से एनर्जी का प्रोपोगेशन है या एनर्जी का मूवमेंट है, आइदर थ्रू पार्टिकल नेचर और थ्रू वेव नेचर, है ना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने
किसी एक बॉल को एनर्जी दी और एकदम से थ्रो किया उसको, तो अगर वो एनर्जी में दे रहा हूँ और वो थ्रो करके फेंक रहा हूँ, तो क्या होगा, जहां पे भी ये कोलाइड करेगी उसको वो एनर्जी पास ऑन कर देगी, है ना। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, किसी एक बॉल को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी और वो उस स्पीड से जा रहा है, जिससे भी टकराएगा उसको वो, अगर इलास्टिक कोलिजन है या नॉन इलास्टिक भी है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी पास ऑन करेगा। सो दैट मीन्स द पार्टिकल इटसेल्फ इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल इटसेल्फ इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। जैसे ये बात समझ में आ रही है जो मैं ये बात कह रहा हूँ, पार्टिकल इज ए इटसेल्फ इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। तो मैंने मान लो जैसे गैस पार्टिकल है, कुछ हीट कर रहे हैं मान लो, है ना, कुछ हीट कर रहे हैं, तो हमने गैस पार्टिकल को एनर्जी दी, गैस पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं किसी से, राइट, और उसको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ द एनर्जी इज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, वन से दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसमें particle itself is carrying the energy, that is particle nature। लेकिन यहाँ क्या होता है वेव नेचर में, द पार्टिकल और रोप है ना, जैसे मान लो ये रोप का एंड है, आपने ये इसको एनर्जी दी, इम्पल्स दिया, तो ये जो है, ये रोप का एंड ऐसे मूव करते हुए यहाँ नहीं गया, है ना। रोप का एंड मूव करते हुए भी जा सकता है, अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी दोगे तो ये इधर ऐसे, है ना, जाएगा टकराते हुए। लेकिन अभी आपने जब इम्पल्स दिया तो इसने क्या किया, नेक्स्ट अपने एटम को या नेक्स्ट, है ना, पार्ट को इसने ये एनर्जी ट्रांसफर कर दी, उसने नेक्स्ट को कर दी, उसने फिर नेक्स्ट को कर दी, इस तरह से, है ना, मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग थ्रू द मीडियम एंड विदाउट पार्टिकल चेंजिंग इट्स पोजीशन, है ना। पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। क्या हुआ यहाँ पे, वेव नेचर का मतलब क्या है, particle, all these particles or rope particles, these has not changed their position. What happened, they have just transferred the energy from itself to next carbon, sorry, next let's say rope particles। ठीक है, तो बस इसलिए फिर क्या हुआ, जैसे ही एनर्जी आई, that's why all these particles are moving in this direction only, है ना, अप एंड डाउन। ये केवल क्या हो सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, अप एंड डाउन, है ना। और ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो हमारी क्या कहते हैं रोप है, वो क्या होगा, किसी भी टाइम पे ऐसे ऊपर जा रही होगी, फिर धीरे धीरे अगर हम लगातार इसको ऐसे इम्पल्स देते रहे लगातार कंटिन्यूस, ये तो अभी हमने एक इम्पल्स दिया है, जैसे एक इम्पल्स दिया है तो कैसे जाएगा वो देख लेते हैं। एक इम्पल्स दिया हमने, तो पहले मान लो यहाँ पे इम्पल्स हमने जनरेट किया, ये पूरा खाली था, राइट। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये इम्पल्स यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इम्पल्स यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके जा रहा है। और अगर हम कंटिन्यूस इम्पल्स देते रहेगा, हमने थोड़ी हर टाइम इंटरवल के बाद लगातार इम्पल्स दिया, तो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा, इधर से एक और इम्पल्स आना चालू हो जाएगा, ऐसे करके फिर ये वेव मूवमेंट होता रहा है। तो लगातार हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये वेव के फॉर्म में लगातार मूव करता जा रहा है। Now, in all these cases, what is happening? The particle is either is going up or down at its mean position, है ना, जो भी है। So there is a displacement either side, that is amplitude। ठीक है, तो ये हमने A लिखा हुआ है। I hope कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज और जो अभी मैंने बोला है उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किसी को डाउट इस बात में, चलते हैं आगे, राइट। So what I was saying is frequency, है ना, उस टाइम पे, तो फ्रीक्वेंसी इज, आई एम सेइंग कि आप ऐसे बोल सकते हो साइकिल पर सेकेंड, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ दिस साइकिल। इसको अगर हम बोलेंगे कि ये एक तरह से एक साइकिल हो गई, क्योंकि ये रिपीट हो रही है ना, पीरियोडिसिटी है इसमें, ये पूरी साइकिल बंद हो गई, फिर से ये नया स्टार्ट हो गया, है ना। सो दिस इज एक्चुअली रिपीटिंग इटसेल्फ। तो या तो हम बोल रहे हैं कि कितनी साइकिल पर सेकेंड हो रही है, राइट, या फिर हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मान लो इस पॉइंट से ये कितनी साइकिल पास हो जाएंगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट number of cycle per second ठीक है, और number of cycle passing through a
point in 1 second. ठीक है, ये हो गया। ये लिख लो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता ही है क्या होता है। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 second. So next is velocity. Velocity is represented by v, or for light it is represented by c. ठीक है, so that is linear distance traveled by wave in 1 second. बस जितना भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, वो लिख लेते हैं। लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, that is speed of light, that is represented by c, and there is a relation between frequency, wavelength and velocity. So that is, याद रखना है, nu equals to, है ना, how many, right, nu equals to c by lambda. You can understand this point is कि nu is number of cycle, ठीक है, in 1 second. Lambda is going to be distance in 1 cycle, or we can say c equals to nu into lambda. ठीक है, तो अगर मैं मान लो ये लिखूं ऐसे भी, तो नंबर ऑफ साइकिल इनटू डिस्टेंस इन 1 साइकिल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। So that's how we can understand this part, कि c equals to nu into lambda. Nu is number of cycle and distance in 1 cycle, है ना, that is equals to total distance. So this is the basis of this relation. Okay, now somebody has raised their hand, let's see क्या कह रहे हैं भाई। yes, हाँ बोलो सोहम। सर मेरा वो जब आप फ्रीक्वेंसी करा रहे तो उसमें डिस्कनेक्ट हो गया, तो फ्रीक्वेंसी के बाद आपने वेलोसिटी कराया है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही पूछना था सर। ठीक है, थोड़ा ऊपर करना है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके, यस, हाँ सी तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा, लैम्डा और न्यू चेंज होता रहेगा। यहाँ पे क्या है, सी इज कांस्टेंट। हाँ, अगर ये एक सेकंड के हिसाब से हो रहा है तो फिर n सेकंड के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन सब बातें ये डिफाइंड किसके हिसाब से हैं, जैसे न्यू इज डिफाइंड फॉर 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई है ना,
मैंने शायद 1 सेकेंड नहीं लिखा है न्यू में, क्या? एक मिनट देख लेता हूँ। नंबर, हाँ ये लिखा है ना, नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो गई, और उन वेव्स की डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ क्या है, मतलब सो दैट्स हाउ वी कैन राइट टोटल डिस्टेंस क्या होगी भाई। समझो ऐसे, मान लो कि एक जो वेव है वो केवल 2 साइकिल ही करती है 1 सेकेंड में, मान लो केवल और केवल 2 साइकिल करती है 1 सेकेंड बस, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट वेव इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ साइकिल इनटू वेवलेंथ, ये लैम्डा है, इनटू 2, तो यही तो हो जाएगा 2 लैम्डा। 2 is number of cycle, lambda is distance, so distance traveled by that wave is going to be 2 lambda, ठीक है। अभी जिनको डाउट आ रहा है उनके बात समझ लेते हैं उनकी भी। किसी ने हाथ उठाया नहीं, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, यस सर, ओके, चलो आगे, ठीक है। ये सब बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, इसी में एक आ जाता है कभी कभी टाइम पीरियड। So that is time period, that is represented by capital T, and this capital T is inversely proportional to, let's say, just that is equal to 1 upon nu, ठीक है, time period, that is time required to complete one cycle, है ना। जस्ट इसका उल्टा कि मान लो अगर पांच साइकिल 1 सेकेंड में लग रही है, मान लो 1 सेकेंड, तो एक साइकिल कितने में लगेगी, 1/5 में, दैट इज 0.2। तो बस ये आ गया आपका। अच्छा, न्यू की मैंने वो नहीं बताई आपको, यूनिट बताना मैं भूल गया, ठीक है। स्पीड की यूनिट तो आपको पता ही है, न्यू क्या होता है, की यूनिट होती है हर्ट्ज, एंड दैट इज 1 साइकिल पर सेकेंड, है ना। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट, और लिख लेते हैं। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, that is going to be second मिनट जो भी है, एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी हर्ट्ज। मेरे पास थोड़ी कम जगह है, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं। यूनिट ऑफ न्यू इज हर्ट्ज, दैट इज साइकिल पर सेकेंड, और समटाइम्स दिस, मैंने क्या लिखा है, और समटाइम इट इज राइट एज सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सो एक यूनिट है इसकी हर्ट्ज, और दूसरी यूनिट है सेकेंड इनवर्स। थोड़ा मेरे पास जगह कम है, आप लोग लिख लेना। नहीं, टाइम पीरियड को वेव नंबर नहीं बोलते हैं, वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा है ना। ये टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। अच्छी बात है, निहारिका टोल्ड मी, यस, वेव नंबर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, है ना, न्यू बार, and this wave number is nothing but, wave number nu bar is nothing but 1 upon lambda, literally that means this, that means number of cycle in one
यूनिट लेंथ। अब ये यूनिट लेंथ कुछ भी हो सकती है, ये यूनिट लेंथ हो सकती है मीटर, सेंटीमीटर, है ना, कुछ भी। मिलीमीटर, नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। यूनिट ऑफ न्यू बार क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ वेव नंबर अकॉर्डिंग टू जो भी यूनिट लेंथ ले रहे हैं उसके हिसाब से आएगा। तो इट कुड बी मीटर इनवर्स, इट कुड बी सेंटीमीटर इनवर्स, इट कुड बी एंगस्ट्रॉम इनवर्स, है ना, नैनोमीटर इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यहाँ पे लेमडा किस में दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल इन वन यूनिट लेंथ। अब ये यूनिट, वन यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, मतलब वन तो मैंने ऐसे लिख दिया है, यूनिट लेंथ का मतलब ही होता है वन। तो दैट मींस एक में कितना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। That amplitude is represented by A. So that is, you can write that, let's say this is height of crest. इन सबका अपना अपना यूज है सबका, तो हम देखेंगे यहाँ पे। यस, कोई कुछ पूछ रहा है, ये जल्दी जल्दी पूछो, फास्ट। सर हाँ, वो वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या था? वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है जो क्या कहते हैं, न्यू बार रिप्रेजेंटेशन। अच्छा हाँ, न्यू बार, ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये डिफरेंस है न्यू और न्यू बार में, बी केयरफुल, ठीक है। अब चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं कॉमन से। तो लेट्स से if wavelength of a certain FM is 200 मीटर, 200 मीटर इसकी ये वेवलेंथ है। फाइंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, सेकंड वेव नंबर, ठीक है, ये दो चीजें फाइंड करो बस। If wavelength of certain FM is 200 meter, find frequency and wave number. ठीक है, बहुत आसान है, हमें C की वैल्यू पता है, लैम्डा आपको डालना है बस, तो आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, ये आप लोग कर रहे हो, चलो ये जल्दी से करो। यस, यस आ रही है। इसको यूनिट भी तो लगा दो इसमें, ये किलो हर्ट्स हो गया, सॉरी हर्ट्स हो गया, तो ये अगर इसको कन्वर्ट करेंगे एम्पलीट्यूड की यूनिट, अच्छा एम्पलीट्यूड की यूनिट आपकी ये डिस्टेंस है, हाइट है ना, तो ये किसमें आएगा आपका, सेंटीमीटर में ही आएगा, मीटर में ही आएगा। तो ये यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी, एम्पलीट्यूड इज सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है राइट, तो आई थिंक सबसे आ गया होगा, राइट, वेरी गुड। चल देख, तो यहाँ पे पहले क्या है, सी न्यू इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। सी वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा, ये कभी दी नहीं जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर। लेमडा क्या है आपका 200 मीटर, तो बस आपने इससे कट कर लिया, ये आ गया 1.5 × 10⁶ हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पहली बात, पहला आंसर। दूसरा आंसर है न्यू बार। व्हाट इज न्यू बार?
न्यू बार इज 1 अपॉन लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 200. सो दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर इनवर्स. ये आ गया आपका न्यू बार. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर सर्टेन के बाद क्या लिखा है? सर्टेन FM लिखा था आई थिंक मैंने, एक मिनट देखता हूँ. हाँ FM. तो लिखा है, क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग would it take a radio wave of frequency 6 into 10⁻³ second inverse to travel from Mars to Earth, a distance of 8 into 10⁻⁷ किलोमीटर. बताओ भाई सॉल्यूशन. ठीक है, तो कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड. दो लोगों के आंसर हैं एंड यस ऐश्वर्या का सही है. आर्यन आपने कुछ गड़बड़ किया, ये 10⁻10 सेकेंड गलत. चलो मैं बताता हूँ, इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है. ठीक है, आपको क्या पूछा है? टाइम. आपको क्या पूछा है? टाइम. आपको स्पीड पता है ना, डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ ये कुछ नहीं लग रहा है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक, दैट मीन्स, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, दैट मीन्स दे आर आस्किंग टाइम. उल्टा, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड यू नो, so you know that is going to be let's say we are going to say एक मिनट, speed equals to, let's say that is distance by time, or you can say distance equals to speed into time, right? So distance is, or you can say time is equals to opposite distance by speed. So distance is given as 8 into 10⁻⁷ kilometer, that means 10⁻³ meter, and the speed of light is 3 into 10⁸. मैंने बोला था ये नहीं दिया रहेगा, आपको याद रखना है. So that is going to be 10⁻². So it is
टाइम t इज इक्वल्स टू 2.66 इंटू 10⁻² सेकेंड। बस आंसर ये नहीं आया आप लोगों से, बताओ इतनी छोटी सी बात, बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। बहुत कम लोगों के ये वाले आंसर आए हैं। इसमें ध्यान रखना था ना कि भाई हाउ लॉन्ग इट विल टेक का से फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो अच्छी बात, गुड। जिसका आ गया बढ़िया है, जिसका नहीं आया उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फ्रीक्वेंसी बह गए वो। तो देखना है, तो एग्जाम में ऐसा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं होती है। यस बोलो बेटा। सर पर टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला 1/, ये है ना फ्रीक्वेंसी, न्यू है ना 1/न्यू। ये टाइम पीरियड थोड़ी ना पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल होती है। ये तो कह रहे हैं कि भाई टोटल बताओ कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल में, जैसे मान लो तुम जो है ना किसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो, यू आर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, सो हाउ मच टाइम you will take to complete one cycle, that is going to be your time period. ओके ठीक है, ओके। चलो ये तो हो गई कुछ कुछ बातें है ना, बेसिक बेसिक। अब नेक्स्ट है इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस आगे, एक मिनट, कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, सुन लेते हैं उनकी भी। यस मयूर, नहीं उठाया? अरे यार था कि बोलो प्रतिमेश। हेलो सर। हाँ तो वहाँ पे डिस्टेंस पे 10⁻³ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो मीटर में कन्वर्ट किया है, हमारी स्पीड मीटर में है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना स्पीड, इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया। आप कट कर देते तो आपका आंसर नहीं आता किलोमीटर, या दोनों को सेम में रखोगे ना। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ब्रेक नहीं होगा आज, डायरेक्ट क्लास होगी 10 बजे, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। नो ब्रेक, नो ब्रेक टुडे। चलो टू पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड। कौन कौन है? यस मयूर इज अगेन रेजिंग हैंड। यस सर अगर टाइम पीरियड निकालते और फिर उसको टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते तो फिर क्या मिलता? तो फिर नहीं मिलता क्या टोटल टाइम? मतलब आप घुमा के कर रहे हो ना फिर बात, तो क्या, एक मिनट, टाइम पीरियड निकालते फिर उसको क्या करते, एक साइकिल तो हमें मिलता, एक साइकिल कंप्लीट करने में फिर हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ती, तो हमें देखनी पड़ती कितनी साइकिल है, डिस्टेंस से नहीं मिलता। एक हमने साइकिल में टाइम पीरियड निकाला मान लो, ठीक है, तो हमें पता चला एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। फिर हम देखते कि भाई कितनी साइकिल है, तो यू हैव टू डिवाइड डिस्टेंस बाय लैम्डा, देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी। तो थोड़ा सा इसमें पहले बैकग्राउंड भी बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। So next sub topic is Planck quantum theory. थोड़ा सा है ना बैकग्राउंड है यहाँ पे, तो बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा हम थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं, राइट। बिफोर प्लैंक्स थ्योरी, बिफोर है ना, लाइट इज considered as wave only, है ना, light is considered as wave only, है ना। अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव, कि वो कैसे प्रोपोगेट हो रही है, वो ऐसे मतलब प्रोपोगेट होती जा रही है, और
एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऐसे एनर्जी देता जा रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव ओनली एंड दैट मीन्स अकॉर्डिंग, और ये किसने बोला है ना, मैक्सवेल करके जो साइंटिस्ट मैंने पहले बोला था, वो उनके हिसाब से क्या था कि लाइट जो है या जो लाइट है या रेडिएशन है दैट इज कंटिन्यूअस, है ना। लाइट जो है वो क्या है, कंटिन्यू, जैसे आप वेव की बात करते हो तो वेव क्या है, कंटिन्यूअस है ना, ऐसा ऐसा वेव नेचर ये कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है ना कि आपने ऐसे तोड़ दिया फिर आपने ऐसे तोड़ दिया, ऐसे थोड़ा चल रहा है कि बीच में गायब हो गया, है ना। सो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। सो लाइट इज वेव ओनली एंड इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। तो वेव क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। And according to, let's say we can write, and according to Maxwell, light या फिर you can say radiation is continuous flow of, है ना, continuous flow of energy. And at that time, according to मतलब wave nature, we are able to explain certain, let's say, phenomena or certain, let's say, properties of light through the wave nature only. So, which is helpful to explain certain properties of light. And that property is one of them is interference. And इसी का दूसरा वाला पार्ट है that is diffraction. तो यहाँ पे कुछ हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, है ना। this is light is continuous form of energy or continuous flow of energy that is actually able to explain interference as well as diffraction, ठीक है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस, इन ब्रीफ हम समझा सकते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है आपका, आएगा आगे, राइट। अगर हम मान लो ऐसा, ये डबल स्लिट लेते हैं, डबल स्लिट का मतलब क्या है, दो ओपनिंग, ऐसे नैरो ओपनिंग है, राइट, और यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, इन सिंगल वेवलेंथ। वेट अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ड्रॉ कर लेने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। and that is actually sending some rate, let's say, ऐसे मान लो मैं इसे पिक्चराइज कर रहा हूँ, that is over here, ठीक है। so this is, let's say, over here we are having मुझे डायग्राम ज्यादा बेटर होगा अगर मैं साउंड के हिसाब से बताऊंगा। तो आई एम नॉट ड्राइंग थ्रू लाइट, लाइट में मैं जो चाहता हूँ वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ऐसे होता है, लाइट है ना, सिंगल वेवलेंथ। मान लो ये आपका कोई सोर्स है, राइट, जिससे वेव आ रही है ना, यहाँ पे this is kind of like this, source is there। तो ये जो स्लिट्स हैं या ये जो नैरो ओपनिंग है, ये क्या करती है, सोर्स का काम करती है। यहाँ है एक ही सोर्स, लेकिन अगर आपने ये दो जगह छोड़ दी तो फिर ये क्या हो जाएंगे, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म ए सोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरह से एक लाइट दो, मतलब एक सोर्स दो सोर्स में एक तरह से बढ़ गया। और जब इनका, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब इनका हम अगर मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आफ्टर सम टाइम अगर हम सुनेंगे
तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो या तो दो लाइट मिलके एक बड़ी लाइट बना लेंगी, या फिर दो वेव जो है ना, वो सब लोग कह रहे हैं स्लाइड ऊपर करना है। एक मिनट, क्या हुआ है भाई, देखते हैं। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ। अरे हाँ भाई, रुको रुको, थोड़ा ऊपर करें। चलो पहले लिख लो ये बात, लिख लो पहले से। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि हैविंग वन वेवलेंथ, ठीक है। तो अभी हमने देखा था लाइट में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ रेज हैं, जैसे गामा, कॉस्मिक, ये सब, और उसमें भी एक वेरिएशन है, मतलब सब तरह की लाइट है जिसका वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है। जैसे विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल लाइट, ठीक है। दैट मींस 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक सब तरह की लाइट हो सकती है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कहूँ केवल और केवल मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो मैंने जैसे बोला येलो लाइट, और येलो में भी मैंने एक पर्टिकुलर, लेट्स से आई हैव टेकन पर्टिकुलर लेट्स से 5000 एंगस्ट्रॉम मैंने ले लिया वेवलेंथ। तो 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। वो येलो में भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अमृता इज सेइंग सर इज दिस थ्योरी इन विच लाइट कैन बी क्लासिफाइड एज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर लाइक फोटॉन्स। यस, हाँ बात करेंगे इसकी। सर इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यस यस, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट इज गोइंग टू शो दीज आर द प्रॉपर्टी कि लाइट ये शो करता है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी इंटरफेरेंस पे आते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, ये छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे ये समझ लो कि जैसे आपने देखा भी होगा जब आप साउंड बॉक्स फिट करते हो, राइट, ये साउंड के हिसाब से, तो क्या हम इस तरह से सोर्स डालते हैं ताकि इक्वल इंटेंसिटी बेटर रहे, राइट। यहाँ पे उसका हर तरफ से, या फिर मान लो कोई आपने बड़ा सा पाइप लिया और उसको दो, जैसे फ्लूट होती है ना, दो छेद कर दिया आपने, एक तरफ से साउंड आपने डाली तो उसके, है ना, आप अलग अलग सोर्स हो गए। यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से दीज आर होल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग सोर्स से ये मतलब साउंड निकल रही है। सो दीज आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज टू सोर्सेस ओवर हियर। एनीवे, हम इसको यहाँ से समझते हैं इस सारी बात को कि छोटा सा अनदर एग्जांपल, अच्छे मान लो समंदर में दो लहरें आ रही है ना, बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है, और वो एक टाइम पे मिल जाती है, तो क्या हो जाता है, एक बड़ी सी वेव बन जाती है। आपने देखा होगा, है ना, कि समुद्र में अगर लहरें बन रही है तो सब आ रही हैं, राइट। सो दे आर गोइंग टू, लेट्स से, कन्वर्ट टू ए बिगर वेव। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड अनदर वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस बात को इससे भी समझ सकते हैं, जो मैंने रोप वाला एग्जांपल दिया था, कि अगर मान लो एक, है ना, एक सिरे से आपने एक रोप को बांध दिया और इसमें पल्स मतलब इम्पल्स देते जा रहे हो, तो इससे पल्स क्रिएट हो रही है, राइट। आपने एक दी अभी छोटी सी पल्स, और एक इसके बाद तुरंत बड़ी सी दे दी, है ना। तो थोड़ी देर बाद जब पल्स यहाँ पहुंची, थोड़ी देर बाद आपने एक और तेजी से बड़ी सी पल्स दे दी, तो क्या होगा, ये इससे मिल जाएगी, और मिल के ये क्या हो जाएगी, एक साथ कंबाइन होके बड़ी पल्स बन जाएगी। ऐसा होता है ना, कि ये बड़ी वाली पल्स छोटी वाली पल्स से मिलेगी, और क्या होगा,
ये कंबाइन हो जाएगी और एक बहुत और बड़ी पल्स बन जाएगी. सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये केवल लाइट में हो सकता है. पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कंबाइन होके, है ना, मतलब बड़ा पार्टिकल नहीं बन सकता है. that is happening in only when these are going to एक साथ चिपक जाए, है ना. वैसा जब एक दूसरे से कोलाइड हो रहा है तो ये क्या होगा, बड़ा पार्टिकल नहीं बनेगा. इसी तरह से चलो अगर ये इस बात की एक पॉसिबिलिटी आप लोगों को लगे कि हाँ हो सकता है सर अगर जुड़ जाए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान लो एक दोनों सिरे से हैं, एक सिरे से इसने पल्स छोड़ी एक दोस्त ने और एक सिरे से तुमने पल्स छोड़ी, है ना. ऐसे ये दोनों ट्रेवल कर रही हैं, क्या होंगी, आपस में एक दूसरे से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट. तो ऐसा क्या होगा, ये दोनों पल्स आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी. तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू पार्टिकल नेचर. की दोनों हमने कोलाइड किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये खत्म नहीं हो जाएंगे दोनों पार्टिकल, है ना, कोलाइड हो गए. So that's how this is the light property which cannot be explained through particle nature. समझ में आ रही है. पल्स वाला एग्जांपल आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, राइट. आप दो लोग मिलके आपस में एक बड़ी सी रस्सी लो और उसको ऐसे, है ना, इम्पल्स दो और फिर आपको दिख जाएगा कि दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. क्या हो सकता है अगर किसी ने बड़ी दे दी और किसी ने थोड़ी छोटी दे दी पल्स, तो ये एक दूसरे को घटा देंगी, तो ऐसा बिल्कुल खत्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन छोटी पल्स हो जाएगी. ओ सॉरी, क्या था, यस. चलो, डिफ्रैक्शन क्या होता है बताएगा. डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो सिमिलर टू इंटरफेरेंस, and the diffraction is actually bending of light through sharp edges. बेंडिंग, लाइट जो है ना वो बेंड हो जाती है ना, एक तरह से. तो जैसे अगर हम बात करें सीडी की, पुरानी जो सीडी आती थी उसमें क्या होता था, लाइट बेंड हो गई और लाइट ब्रेक हो गई एक तरह से. तो ऐसा हो रहा है कि अगर आप सीडी को देखोगे तो हमेशा उस पे 7 कलर दिखते हैं ना, आपको बढ़िया सा स्पेक्ट्रम दिखता है ना. जैसे प्रिज्म के थ्रू आप देखते थे 7 कलर, वैसा सीडी हमेशा वैसी ही दिखती है. क्यों? क्योंकि सीडी में बहुत सारी शार्प एजेस हैं, मतलब छोटे छोटे हैं, वो हमें नहीं दिख रहे, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट द लाइट इज ब्रेकिंग इनटू स्पेक्ट्रम एंड दैट इज डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो एक तरह से डिफ्रैक्शन का मतलब यही है. और बेंडिंग का दूसरा एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें, क्या कहते हैं, जैसे आप डिफ्रैक्शन को और इससे समझ सकते हो कि जो पेड़ हैं और उनकी जो लीव्स हैं ना, ट्रीज हैं और उनकी जो लीव्स हैं, लीव्स उनके शार्प एजेस होते हैं ना किनारे. तो अगर मान लो पार्टिकल नेचर होता है ना, जैसे ये मान लो लीव मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये जो है इस पे शार्प एजेस हैं ना किनारे पे. अब क्या होगा अगर यहाँ से लाइट गिरेगी और अगर ये पार्टिकल नेचर होता तो हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाता, तो लाइट कभी नीचे पहुंचती ही नहीं, राइट. लेकिन आपने देखा है कि थोड़ी सी लाइट अगर बेंड होगी देन इट इज गोइंग टू गो डाउन. सो दैट इज द, लेट्स से सम एग्जांपल जो यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइट इज एक्चुअली बेंडिंग. लाइट इज नॉट ऑलवेज लाइक मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, है ना. वो कहीं से जैसे कहीं शार्प एज से टकराएगी तो फिर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी. दैट इज डिफ्रैक्शन. आई बात समझ में? यस. हाँ एक मिनट. यस सर, हाँ सर इसका मतलब तो है कि डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस ही नहीं है. नहीं, रिफ्रैक्शन तो मीडियम में होता है ना, अभी अंदर है ना भाई, हम तो एयर में बात कर रहे हैं, राइट. हाँ सर, करेक्ट है ना, वहां पे मीडियम चेंज हो रहा है ना, इसलिए. यस, रिफ्रैक्शन भी है बेंडिंग ऑफ लाइट, बट दैट इज इन मीडियम. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेम मीडियम. जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स है ना, ये क्लाउड्स है, मान लो क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स है क्या, मतलब क्लाउड्स इज लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वाटर की ड्रॉप्स हैं
ये ऐसे, और आपकी ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट क्या होती है, इनसे पास होके है ना निकल रही है। तो ये कैसे निकल रही है, हाउ दिस इज हैपनिंग? अगर केवल क्लाउड होते तो यहाँ से क्या होता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती थी, तो नहीं, से पास हो रही है। दैट इज हाउ दिस इज रिफ्लेक्ट, दिस इज लाइक एग्जांपल ऑफ डिफ्रेक्शन की लाइट क्लाउड के थ्रू पास होके निकल। कभी देखा नहीं है आपने कि ऐसे रेज टाइप की निकलती है बीच में से, क्लाउड्स के दिखती है, ऐसे लगता है कि अरे उसके बीच में से निकल रही है। सो दैट्स हाउ द बेंडिंग इज हैपनिंग, एंड that narrow opening like looks like a source, ये source of light लगता है। सर हाँ सर, तो जब डस्ट कहीं पे उड़ती है तो वहां से लाइट आती है, हाँ तो हाँ, उसको वो भी क्या वो भी करता है? वो फिर वो एक्चुअली वो इसको एक और बोलते हैं, दैट इज लाइक स्प्रेडिंग, है ना। उसको वो क्या होगा, एक तरह से लाइट के वेक्टर का इतना हमने वो है एक तरह से डिफ्रेक्शन ही, लेकिन लाइट के पार्टिकल्स इतने ज्यादा, डस्ट के पार्टिकल्स ने लाइट को इतना ज्यादा स्प्रेड कर दिया है, that's how we are able to see the color of sky is blue, और ये आपने पढ़ा होगा बचपन में समंदर का कलर, है ना, नीला होता है, ये सब बातें पहले उसके हिसाब से आती है, राइट। ओके सर, ठीक है, समझ गया। हाँ, स्कैटरिंग, यस यस, हाँ, दैट इज डिफ्रेक्शन इज लाइट का जो है ना बेंड होना है, और अगर यही पूरे फैल जाए, है ना, हर जगह से ये फैलता जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं दूसरी, अब ये तो हो गई हमारी वेव नेचर, बट व्हाट प्लैंक सेड कि किसी सर्टेन फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर, है ना। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं हम वेव नेचर से बता नहीं सकते, उनको समझाने के लिए फिर हमें पार्टिकल नेचर बताना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, कई लोगों ने फिर से हाथ उठाया है, राइट। यस ध्वनि, बोलो। हेलो सर। हम्म, सर अभी रिफ्रैक्शन में जब लाइट बेंड होता है तो बहुत बार क्या होता है ना, वो स्पेक्ट्रम विजिबल होता है, तो अभी डिफ्रैक्शन में भी स्पेक्ट्रम दिखता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया ना वो सीडी प्लेयर वाली बात। सीडी प्लेयर में होता क्या है, सीडी में, नॉट सीडी प्लेयर, सीडी आपको ऐसी दिखती है, तो हाँ, कलर दिखता है ना पूरा, कलर्स दिखते हैं। सात कलर दिखते हैं ना ऐसे एकदम, हाँ। ऐसे घुमाओ इधर उधर करो तो, और अच्छा स्पेक्ट्रम दिखता है। तो वो हम्म। इसीलिए वहां पे लाइट जो है ना वो आपकी ब्रेक हो रही है ना, डिफ्रेक्शन के थ्रू। अच्छा, हमेशा फॉर्म होता है? हमेशा, ओके, हमेशा। थैंक यू सर। सर हाँ, ये डिफ्रैक्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन जैसा है क्या? नहीं 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 नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं है एक्चुअली। डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस एग्जैक्टली सेम ही है। इंटरफेरेंस में क्या है, अगर हमने दो सोर्स लिए हैं या कुछ सोर्स लिए हैं, है ना, इंटरफेरेंस, तो क्या होगा, लाइट के अलग अलग सोर्स बनेंगे और वो आपस में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे, तो या तो एक दूसरे को काट सकते हैं या फिर एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। मतलब दो वेक्टर हो गए एक तरह से, है ना, दो लाइट के वेक्टर हो गए, विचार अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या करेंगे, इनहेंस कर देंगे। दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिफ्रेक्शन इज सिमिलर टू इंटरफेरेंस, बट ये है कि अगर एक से ज्यादा, मतलब दो नहीं, दो से ज्यादा, अगर हमने बहुत सारे अगर हमने मान लो ऐसे स्लिट ले लिए बीच बीच में, है ना, तो फिर क्या होगा, उनसे लाइट ब्रेक होती जाएगी, तो एक काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम टाइप का बन जाएगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी डिफ्रेक्शन, ओके। ठीक है। सो मतलब ये बिल्कुल पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक मतलब उसके रास्ते पर कुछ आ गया और उसने थोड़ा सा टर्न लिया है हाँ फिर। बस थोड़ा सा, हाँ, यस। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट है, राइट, बट certain properties of light cannot be explained by wave nature, that can only, you know, so according to wave nature, those, you know, properties
दोज प्रॉपर्टीज आर, है ना, उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। explained by particle nature. So that is, hence light shows dual nature, you know, that is called dual nature of light. It is showing particle nature as well as wave nature. अभी यहाँ तक करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये those are going to explain through Planck's quantum theory. तो अब ये बैकग्राउंड है ना, मैंने बोला था ना कि कुछ बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा, फिर मैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताऊंगा। तो बिफोर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें ये थोड़ा समझना था कि पार्टिकल नेचर और क्या कहते हैं वेव नेचर में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम समझा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि मैंने जैसे बोला था कि पार्टिकल का मतलब क्या है कि पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी, ठीक है, वो पूरी की पूरी एनर्जी को एक साथ लेके जाएगा। जैसे मान लो 50 किलो जूल एनर्जी है, मान लो एक पार्टिकल लेके जा रहा है, तो पूरी 50 किलो जूल एनर्जी एक ही पार्टिकल लेके जा रहा है। बट इन वेव व्हाट इज हैपनिंग, इट इज स्लोली गोइंग, है ना, वो 50 किलो जूल एक साथ नहीं जा रही है, धीरे 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 करके जा रही है ना, बट कंटिन्यूस फ्लो है, दैट इज, सो दैट इज वेव नेचर, है ना। और कुछ जगह पे हम ये बात कर सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बट के और वेव नेचर से कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हम वेव नेचर से कर सकते हैं, पार्टिकल से नहीं कर सकते, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमने फिर बोला कि लाइट जो है, जो जब जहाँ पे काम आ जाए उसको उस तरह से ट्रीट कर लेंगे। तो लाइट इज शोइंग बोथ नेचर, इट इज शोइंग पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे इसको खत्म कर रहे हैं। ये जो असाइनमेंट दिया है इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया ही था अभी, है ना, और अभी थोड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे शायद। कुछ बोर मॉडल के हैं, तो अभी फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बाकी फिर बाद में। तो अभी भी ये थ्योरी ही चल रहा है। अभी एटॉमिक बोर मॉडल के बाद थोड़े से क्वेश्चन आना चालू होंगे। यस, all the very best for all the CBSE students and I hope you all are going to do well, ठीक है। looking for a very good results। तो आप लोग मुझे बताना जिसके अच्छे मार्क्स आए हों। ICSE में आ चुके हैं आई थिंक, कुछ लोगों के आंसर, कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज गाइज हु स्कोर्ड वेल। जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ये है ना, 11th और 12th, वी कैन डू बेटर। मेरे को 10th में कितना आया था यार, डोंट आस्क, है ना, आई लाइक ओके, माय मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। कब है सीबीएसई का रिजल्ट? आई डोंट हैव नो आइडिया, समबडी सेड कि सर सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, सो लाइक ओके दैट्स व्हाई 15 को आने वाला है, ओके तो टाइम है, ओके चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट का फेक न्यूज है, ओके विल सी, ठीक है विल सी। हाँ इट हैपेंस समटाइम्स, दे आर नॉट। हाँ ब्रेक है आप लोगों का, ब्रेक स्टार्ट हो गया है, 10:15 से नेक्स्ट क्लास होगी, ओके सो गो एंड ग्रैब समथिंग, ईट इट, ओके एनर्जी ले लो। हाँ 2 घंटे और जाएंगे, फिर 2 घंटे और हैं, राइट, सो टेक केयर, बाय।